Hello friends, welcome to all of you in my channel Biome, a pioneer in biological sciences. Today's topic is biosafety, a practical consideration. When the laboratory persons work in laboratory, what are the various safety precautions to must be followed by the laboratory persons? So please press the bell icon to get the more notification when you upload the new channels, new videos on this channel. If you like it, please like, share and comment. What you got from this topic or this video lecture? We will discuss about the what are the various general safety practices to be used in the laboratory and what is needed to develop and implement safety policies and training in the laboratory. इस लेक्चर से आपको ये पता चलेगा कि हमें लैब में कौन कौन सी जनरल सेफ्टी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए और क्या वेरियस पॉलिसीज़ हैं, क्या ट्रेनिंग्स हैं लेबोरेटरी पर्सनस को देनी चाहिए जिससे कि वो लैब के अंदर अच्छे से काम कर सकें और कोई भी उनको हार्म ना हो. What are the various policy safety in the laboratory? Employees themselves for their own protection are responsible for adhering to the all biosafety guidelines and regulations set out by the laboratory management as well as demonstrate competency in the laboratory safety techniques. तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि क्या पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए. जो भी एम्प्लॉइज़ है, जो भी पर्सनल्स लैब में काम कर रहे हैं, ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए गए हैं लैब के अंदर, जो बायोसेफ्टी गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना ये लेबोरेटरी पर्सनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि मैनेजमेंट की. What are the standard work precautions? Standard work precautions refers to the precautions consistently used on the presumptions that all blood and body fluids are potentially infectious for blood-borne pathogens. It means when you work in the laboratory, अगर आपके पास में कोई भी बॉडी फ्लूइड आ रहा है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे पस हो, चाहे सीरम हो, कोई भी बॉडी फ्लूइड्स है, तो आप उसको इन्फेक्शियस सब्सटेंस मान के ही चलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू वर्किंग विद द HIV सैम्पल्स, उसमें नॉन रिएक्टिव भी होंगे, रिएक्टिव भी होंगे. इट मीन्स इफ़ द सैम्पल after testing found negative, that means HIV antibody is not present in the sample. So you cannot say that this pathogen, this blood is not infectious. हो सकता है उस ब्लड के अंदर दूसरे इन्फेक्शंस, दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, नॉट फॉर द HIV. तो यहाँ पे ये बताया गया कि आप कोई भी बॉडी सीरम, बॉडी या बॉडी फ्लूइड्स है, उसको आप इन्फेक्शियस सब्सटेंस मान के ही काम करेंगे, यानी कि उसमें ब्लड बॉर्न पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे. Similarly, all instruments and other equipments that come in contact with blood are assumed to be potentially infectious and must be properly handled, cleaned, sterilized, disinfected or safely disposed of. It means when you working with the various equipment in the laboratory, for example the centrifuge, when you put the test tube in the centrifuge with the filled with the blood, when you working with the centrifuge, some aerosols is developed, they deposit on the lid of the centrifuge. So you cannot say that the equipment which is used in the laboratory is non-infectious. They are infectious. तो लैब के अंदर कोई भी इक्विपमेंट हो वो इन्फेक्शियस ही माना जाएगा. तो उसको आपको प्रॉपरली हैंडल करना है, प्रॉपरली क्लीन करना है और स्टरलाइज करना रहेगा उसको कंटिन्यूअसली. सेफ्टी वर्क प्रिकॉशंस इंक्लूड हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर. सबसे पहला स्टेप जो आता है वो अपने हाथों को सोप और वाटर के, रनिंग वाटर के माध्यम से धोना. सेकंड है बैरियर प्रोटेक्शंस. दैट मीन्स इफेक्टिव यूज ऑफ द ग्लव्स, gown, mask, goggles, foot cover, etc. What are the various personal protective equipments? We can say the PPE. इसमें गॉगल्स होंगे,
गाउन होगा, मास्क होगा, फुट कवर होगा, हेड कवर होगा, ग्लव्स होंगे, ये सब आपके पीपीई हैं। तो इनका यूज़ करना चाहिए कि पैथोजेंस जो हैं वो आपकी बॉडी को या आप इन्फेक्ट ना कर सकें। सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प आइटम्स एंड प्रिवेंशंस ऑफ एक्सीडेंट विद शार्प। आपकी लैब में कोई भी शार्प आइटम है, फॉर एग्जांपल द स्कैल्पल हो गई, फॉर एग्जांपल द सिरेंजेस, निडल्स, तो इन सब का जो यूज़ है, या ग्लास है, ब्रोकन ग्लास है, इन सब का यूज़ जो है वो बहुत सावधानी से करना है कि कोई भी अक्रेंस ना हो, कोई भी इंसिडेंट आपकी या एक्सीडेंट आपकी लैब के अंदर ना हो। Safe handling of specimen during collection, processing and transport. When you collect the sample, either any body fluid, when you process the sample, and if is possible to transport from one place to another, यहाँ पर सेफ हैंडलिंग फॉलो करनी होगी कि कहीं पे स्पिलेज ना हो, कहीं बॉडी के कांटेक्ट में ना आए आपका। सेफ हैंडलिंग ऑफ स्पिल्स एंड ब्लड, इफ़ अगर ब्लड स्पिल कर रहा है तो उसको आपको देखना होगा कि कैसे उसको हैंडल करना है। सेफ वेस्ट डिस्पोजल, जो आपकी लैब के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका डिस्पोजल कैसे हो रहा है। एंड द मस्ट इज़ इम्यूनाइजेशन विथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स। all the laboratory personals required that they should be vaccinated about the hepatitis vaccine, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाना बहुत मस्ट है कि हो सकता है उसमें HIV के पैथोजेंस ना, HIV का वायरस ना हो, बट यू कैन नॉट से दैट द ब्लड और द ब्लड सीरम और द बॉडी फ्लूइड्स इज नॉट इन्फेक्टेड विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज मस्ट फॉर द लेबोरेटरी पर्सनल्स। Continuation with the standard work precautions, the take protective measures. It means all the protective measures must be taken by the laboratory personals. आप बिल्कुल लापरवाही टाइप की नहीं कर सकते हैं लैब के अंदर। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं लेबोरेटरी के लिए, जो प्रिकॉशंस फॉलो करने को दिए जा रहे हैं, वो आपको फॉलो करना ही होगा। इंश्योर प्रॉपर ऑफ यूज़ ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूज़ मस्ट है। और ग्लव्स की भी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे ग्लव्स को आपको वियर करना है, कैसे उसको वियर आउट करना है कि आपका जो भी ब्लड से जब आप काम कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को टच ना करे। डो नॉट टच आई, नोज, माउथ और एनी अनकवर्ड बॉडी पार्ट्स, टेलीफोन रिसीवर, डोर हैंडल्स, मोबाइल, स्ट्रैप एंड ग्लव्ड हैंड। तो जब आपने ग्लव्स पहन रखा है, आप वर्किंग कर रहे हैं लैब के अंदर, तो आप किसी भी अपने बॉडी पार्ट को, आइज़ को, नोज़ को, माउथ को, या फिर अपने मोबाइल्स को, डोर हैंडल्स को, रेफ्रिजरेटर के हैंडल को, टैप को ग्लव्ड हैंड के साथ मत टच करिए। अगर आप कर रहे हो लेबोरेटरी के अंदर कि टैप को आपने ग्लव्स पहन के यूज़ किया है, या रेफ्रिजरेटर का डोर आपने ग्लव्स पहन के ओपन किया है, तो प्लीज़ मस्ट बी मार्क ऑन दैट रीज़न कि बिना ग्लव्स के ना छुएं, क्योंकि ये आपको पता है कि आप लैब में काम कर रहे हो कि कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन होगा। इफ़ आउटर एजेंसी और द एक्सटर्नल एजेंसी कम्स टू विजिट फॉर योर लेबोरेटरी, तो उनको नहीं पता होगा कि कहाँ पे क्या इन्फेक्शियस हो सकता है। वो तो जनरली मान के चलेंगे कि यू कैन नॉट यूज़ ग्लव्ड, यू कैन नॉट यूज़ ग्लव फॉर द ओपनिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर। Do not open laboratory doors with gloved hand. Dispose infectious waste in appropriate container. Do not interchange equipment between laboratories. आप लैब के अंदर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कि अलग अलग लैब्स के अंदर एक ही इक्विपमेंट को आप शिफ्ट कर रहे हो कि आज यहाँ पे मेल फंक्शनिंग हो गई इक्विपमेंट की तो हम दूसरे लैब से लेके आ गए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस लैब में जो भी वर्किंग हो रही है वहाँ पे इन्फेक्शियस प्रेजेंट होगा तो वो आपके लैब के अंदर आ जाएगा। तो कभी भी इक्विपमेंट को शिफ्ट नहीं करना है कि एक लैब से दूसरी लैब में हमने शिफ्ट कर दिया। इन्फेक्शियस वेस्ट मटेरियल उनको प्रॉपर बिन्स में डालना होगा। ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, रेड है, येलो है, तो किस में क्या जाना है इसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो इसका करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो आपको ये पता होना चाहिए किस लैब किस बिन में क्या सब्सटेंस जाना होगा, क्या इन्फेक्शियस है, क्या नॉन इन्फेक्शियस है। गाउन शुड बी क्लोज्ड इन फ्रंट। बहुत से लोग गाउन को यूज़ करते हैं, एप्रन को यूज़ करते हैं, सामने से पूरा खुला रहता है और वेस्ट तक ही रहेंगे, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर द लेबोरेटरी पर्सनल्स। तो गाउन शुड बी क्लोज्ड
फ्रॉम द फ्रंट पूरा क्लोज रहे, आप बैक साइड पे उसको बांध कर सकते हैं, और अप टू नी तक होना चाहिए विद कफ्ड स्लीव्स। ऐसा नहीं है कि ओपन है। व्हेन यू वर्किंग विद ऑन द वर्किंग बेंच, तो आपका जो कफ है, जो एप्रन का कफ है, वो आपका वर्किंग बेंच पे रगड़ रहा है, मिस कर रहा है, अटैच हो रहा है। डो नॉट वियर ओपन शूज़। कभी भी लैब के अंदर ओपन शूज़ नहीं होना चाहिए। इट मीन्स चप्पल पहन के या स्लीपर पहन के आप लैब में काम नहीं कर सकते हो। इट मस्ट बी कवर्ड विद द शूज़ और द शू कवर। दैट मीन्स जो भी इन्फेक्शस अगर गिर रहा है तो वो आपके सीधे पैर पे ना गिरे, वो कवर्ड एरिया पे गिरे। वॉशिंग इज़ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस। अगर आपके हाथ में कहीं पे क्रैक नहीं है, कोई एब्रेशंस नहीं है, तो हैंड वॉशिंग इज़ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ऑल द पैथोजेंस। इट मीन्स इट prohibit the entry of the pathogen. To wash hand after handling all materials known or suspected to be contaminated. It means अगर आपको लग रहा है कि लैब के अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं और कोई भी सस्पेक्टेड कंटामिनेटेड है भी या नहीं भी है, आपको हैंड वॉश करना मस्ट है। और ऑलमोस्ट गुड हैंड वॉशिंग इज़ 15 सेकेंड विद रनिंग वाटर, सोप एंड फ्रिक्शंस, बट इट इंक्रीज you can use up to the 20 minutes or the 20 seconds or the 30 seconds. Proper hand washing is must for when you working in the laboratory. Here the steps of the hand washing is present in the slide. First, rinse hand. Second, use of soap. थर्ड वन इज़ पाम टू पाम। आप अपने पाम को रब कर सकते हैं। फिंगर इंटरलेस्ड, फिंगर को क्रश कर सकते हैं। बैक टू हैंड, बेस ऑफ थंब, फिंगर नेल्स, रिस्ट। तो ये स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं हैंड वॉशिंग के लिए। इट मीन्स कोई भी ऐसा एरिया ना प्रेजेंट हो जहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट्स छिप सकते हैं या अटैच रह सकते हैं और हैंड वॉशिंग से ना जाए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करें हैंड वॉशिंग में, और कोई भी ऐसा एरिया ना बचे जहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस प्रेजेंट हों। तो ये सब स्टेप्स जो हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन को। सो हियर इन द स्लाइड some area is present which is commonly missed in the hand washing. You can see the different colors. Most frequently missed कि आप जब अनयूजुअल हैंड वॉशिंग करते हैं, फटाफट आपने हाथ धो के चल दिए, तो कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो कि बच सकते हैं कि वहाँ पर आपके जो पैथोजेंस है वो छिप सकते हैं। कौन से ऐसे रीजन जो फ्रिक्वेंटली मिस्ड, मतलब मिस हो गए कि आपने वहाँ पे आपका सोप नहीं लगा या आपने वहाँ पे रबिंग नहीं की। और कौन से ऐसे एरिया हैं जो लेस फ्रिक्वेंटली, यानी कि वहाँ पे सोप भी लग रहा है और आपका जो भी वाटर है उससे आप रिंस कर रहे हैं। तो ये एरियाज़ आप देख सकते हैं कि किस एरिया में इस स्लाइड के अंदर कि कौन से एरिया हैं जो हम लोग कॉमनली मिस कर देते हैं कि वहाँ पर सोप और इसका यूज़ नहीं किया जा रहा। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि किस जगह पर ये छिप सकते हैं पैथोजेंस, तो हमें उस एरिया को बहुत कायदे से वॉश करना होगा। नेक्स्ट इज शार्प सेफ्टी। शार्प सेफ्टी मीन्स डोंट टच ब्रोकन ग्लास विद हैंड्स। कोई भी कांच है, अगर आपकी लैब के अंदर ब्रोक हो रहा है, टूट गया है, तो उस टूटे हुए कांच को अपने हाथों से नहीं उठाना है। कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स ले लीजिए जिसके माध्यम से आप उसको उठा सकें, चाहे वो तख्ती का टुकड़ा हो या कोई भी ऐसे फॉर्सेप्स हों जिससे कि आप प्रॉपर्ली उसको उठा सकें। यूटिलिटी ऑफ निडल कटर एंड डिस्ट्रॉयर मिनिमाइज द चांस ऑफ गेटिंग इंजरी वाइल कलेक्टिंग ब्लड। जब आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं आइदर ऑफ द निडल प्रिक या सिरेंजेस के माध्यम से, तो हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं कि हमें इन्फेक्शन ना हो या हमें वो पिन जो है वो ना चुभे। मिनिमाइज द चांस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ द सिरेंज एंड द निडल्स, यूज निडल कटर डिस्ट्रॉयर एंड रिड्यूसेस चांसेस ऑफ द एक्सीडेंटल पिक ड्यूरिंग वेस्ट डिस्पोजल। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो सिरेंज हम यूज़ कर रहे हैं वो रिसाइकलिंग में ना आ जाए। इट मीन्स आपको निडल कटर यूज़ करना होगा, निडल को आपको कट करना होगा, जिससे कि आप रिड्यूस कर सकते हो एट ड्यूरिंग द वेस्ट डिस्पोजल और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जो भी पर्सन है उसको एक्सीडेंटली प्रिक ना हो।
तो निडल कटर को यूज़ करना मस्ट है कि व्हेन यू ड्रॉ द ब्लड फ्रॉम द पर्सन, तो फर्स्ट यू डिस्ट्रॉय द निडल बाय द निडल कटर। आपको निडल कट करनी है और उसके बाद ही आपको डिस्पोज करना होगा प्रॉपर डिसइंफेक्शन यूज़ करके। डू नॉट रीकैप द निडल्स, कभी भी आपको रिकैपिंग नहीं करनी रहती है। व्हेन यू ड्रॉ द ब्लड फ्रॉम द पर्सन, यू कैन नॉट रिकैप द निडल, आप रिकैप नहीं कर सकते हैं। अगर इन केस बाई चांस कभी करना भी पड़ जाए तो डू नॉट यूज़ योर सेकेंड हैंड रिकैपिंग विद द फर्स्ट हैंड, बट ये नहीं करना है, रिकैपिंग आपको कभी नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। स्प्लैशेस टू द आई, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वर्किंग विद इन लेबोरेटरी, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी स्प्लैश हो गया आपकी आँख में, तो क्या करना है, ड्यूरिंग द स्प्लैश फ्लश द आई फॉर 5 मिनट्स विद क्लीन वाटर। आपको क्लीन वाटर से, साफ पानी से अपनी आईज़ को वॉश करना होगा 5 मिनट्स तक। कैसे? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इट मीन्स ऐसे आपको पानी से क्लीन करना है कि आपका जो भी वाटर है वो बाहर निकले। ऐसा ना हो कि आपके जो प्लिका सेमिलिनेरिस होती है या जो आई का अंदर का पोर्शन होता है वहाँ पे ब्लड पानी जाए, पानी जो है वो आपके चीक्स के थ्रू बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 मिनट इज़ सफिशिएंट फॉर द व्हेन वी फ्लश द आई फॉर द विद क्लीन वाटर। एंड इफ़ द केमिकल इज़ इनसाइड, अगर आँख में कोई केमिकल गया है तो उसका ड्यूरेशन हो जाता है 15 मिनट्स से। 15 मिनट्स तक आपको आई को वॉश करना होगा क्लीन वाटर से। रीज़न क्या है कि केमिकल्स इज़ मोर डेंजरस, तो वो आपकी आँख को डैमेज कर सकता है। तो 15 मिनट्स इज़ रिक्वायर्ड टू फ्लश द आई फॉर द विद द वाटर। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गया है, कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स गया है, इट मीन्स आइज़ में क्या होते हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी जो अगर बैक्टीरियल पैथोजन या कोई भी इंटर किया हुआ है तो वो उसको खुद डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो 5 मिनट्स इज सफिशिएंट, बट इन द केस ऑफ केमिकल it requires 15 minutes to flush the eye with the water. Commonly used disinfectant in the laboratory when you working with the biological organisms, तो surface disinfection is very must. तो you can use ethyl alcohol 70%, glutaraldehyde 2%, sodium hypochlorite solutions 1-2%. Now the 1% is sufficient for all the activities, and iodine 10% is the concentration of the various chemicals which is used for the disinfection purpose in the laboratory. Recommended strength of the sodium hypochlorite. For the spills you can use 5 to 10%, or we can say the concentrated hypochlorite solution can be used for the spills. And surface contamination, if the surface is smooth, it means if the granite is present or the mica is present on the table, so you can use the 1% sodium hypochlorite solution. But if the surface is porous, that means if any blood spot is there, तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वुड में, तो वहाँ पे आपको 10% या इट मीन्स और द 5 to 10% hypochlorite solution can be used for that decontamination of the surface. How to management of the spills. अगर कहीं पे स्पिल मैनेजमेंट हो गया है, स्पिल हो गया है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कहीं पर अगर स्पिलेज है ब्लड का या एनी बॉडी फ्लूइड्स का, तो पुट एब्जॉर्बेंट मटेरियल ऑन स्पिलेज एरिया। उस जगह पे क्या करना है आपको, एब्जॉर्बेंट मटेरियल, कॉटन रख दिया आपने या कोई दफ्ती का टुकड़ा रख दिया जो एब्जॉर्ब कर ले, या फिर आपने न्यूज़पेपर्स डाल दिए वहाँ पे, जो भी अवेलेबल मटेरियल हो उसको आप वहाँ पे डाल देंगे, जिससे कि जो भी बॉडी फ्लूइड्स है वो सोख ले। कॉटन डाल दिया तो कॉटन क्या करेगा, उसको सक कर लेगा। अगर आपने कोई भी न्यूज़पेपर रख दिया या ब्लॉटिंग पेपर डाल दिया तो वो उसको सक कर लेगा। देन flood with 10% sodium hypochlorite solution upon and around the spill and leave for 30 minutes. वहाँ पर आपको 5 to 10% का सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन उस एरिया पे डालना है फ्रॉम
आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि बाहर से डालते हुए अंदर की तरफ आना होगा आपको, जिससे कि जो पैथोजेंस हैं वो अंदर से बाहर ना जाए। जब आप बाहर से अंदर की तरफ हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन को लाएंगे तो जो भी पैथोजेंस हैं वो अंदर ही रह जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और इसको आप 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। देन प्लेस द एड्सॉर्बेंट मटेरियल इन द बायोहजार्ड बैग मींट फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट। उसको आप ये मान के चलेंगे कि ये इन्फेक्शियस मटेरियल है और उसको आप प्रॉपर बायोहजार्ड बैग में डाल देंगे उठा करके बाद में। रीअप्लाई द डिसइंफेक्शन सोल्यूशन टू ऑल एक्सपोज सरफेस। अगर कोई ऐसी जगह बची रहेगी उसके आसपास का तो वहाँ पे आपको डिसइंफेक्शन सोल्यूशन फिर डालना है। एंड थॉरो वॉश ऑफ द एरिया विद सोप एंड वाटर, और उस एरिया को सोप और वाटर के साथ में क्लीन करना होगा। This is about all the biosafety precautions or the measures which will be taken in the laboratory. Thank you for watching this video. Please subscribe, like and comments on this topic. If you like this channel, please press the bell icon and subscribe the channel so you get more notifications when we upload the new videos to this channel. Thank you very much. Thanks.